ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے اہم LMS یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر سے رابطے میں رہتے ہیں اور اسی کے ذریعے اسائنمنٹ دی اور وصول کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے بعد اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں جو سوالات ابھرتے ہیں ان کے جوابات بھی اسی کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں۔ LMS ای لرننگ کا انتہائی اہم کمپوننٹ ہے اور اسٹوڈنٹس دنیا کے کسی بھی حصے سے اسے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ DVD یا YouTube پر لیکچر دیکھ رہے ہوں تو اسی وقت اسے پاز کر کے اپنا سوال لرننگ مینجمنٹ سسٹم پر پوچھ سکتے ہیں۔ LMS پر آپ کو 24 گھنٹے سوال پوچھنے کی سہولت میسر ہے، لیکن اس کا جواب آپ کو آفس آورز کے دوران دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس LMS پر ہر کورس کے ہینڈ آؤٹس بھی دیے جاتے ہیں۔ ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ لیکچر اٹینڈ کرنے سے پہلے آپ ہینڈ آؤٹ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سے آپ کو لیکچر سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنا ایک اسٹڈی گروپ بنا لیں اور لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ورچوئل یونیورسٹی کی کمیونٹی سے انٹریکٹ کریں اور پرابلمس کو آپس میں شیئر کر کے سالو کر لیا کریں۔ جب آپ کو اسائنمنٹ دی جائے تو اسے آپس میں ڈسکس ضرور کریں، لیکن اپنی اسائنمنٹ خود حل کر کے سبمٹ کریں۔ یاد رکھیں کہ اسائنمنٹ میں چیٹنگ بالکل نہیں کرنی، کیونکہ چیٹنگ کے بارے میں یونیورسٹی کی پالیسی بہت سخت ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو LMS کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم VU LMS کی ویب سائٹ اوپن کریں گے۔ سائٹ اوپن ہونے کے بعد اسکرین کے اوپر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ID، پاسورڈ، کیپ می لاگڈ ان، فورگاٹ پاسورڈ اور اس کے نیچے سائن ان کا بٹن ہے۔ اس سے نیچے نوٹس بورڈ اور اسٹوڈنٹ ہینڈ بک کے 2 لنکس دیے ہوئے ہیں۔ نوٹس بورڈ کو اوپن کرنے سے آپ کے پاس جو اسکرین اوپن ہوگی اس کے اوپر لیفٹ سائڈ پر نیوز اینڈ ایونٹس کا سیکشن موجود ہے، جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کی طرف سے اناؤنسمنٹس دکھائی جاتی ہیں۔ اسکرین کی رائٹ سائڈ کے اوپر امپورٹنٹ لنکس اینڈ نوٹیفیکیشنز ہیں، جس کے اندر اسٹوڈنٹس کے لیے مفید لنکس پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ نوٹس بورڈ کے نیچے اسٹوڈنٹ ہینڈ بک کا لنک دیا گیا ہے، جس کے اندر اسٹوڈنٹس کے لیے مفید مٹیریل پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اب ہم اسٹوڈنٹ ID اور پاسورڈ کرنے کے بعد سائن ان کرتے ہیں۔ سائن ان کرنے کے بعد ہوم اسکرین کے اوپر آ جاتے ہیں، جس میں اسکرین کے رائٹ سائڈ کے اوپر اسٹوڈنٹ کی پکچر، اسٹوڈنٹ کا نام اور ساتھ میں بیل آئیکن جو کہ نوٹیفیکیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا آئیکن ہے، جس کے ذریعے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر کے ساتھ وائس کال کے اوپر اور ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ ہوم اسکرین کے اوپر اسٹوڈنٹ کے کرنٹ سیمسٹر کے انرولڈ کورسز موجود ہیں اور ان کورسز کے ٹائٹلز اور کورس کوڈز اسکرین کے اوپر دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں کورس انسٹرکٹر کی انفارمیشن اور پکچر بھی دی گئی ہے، اور کورس ٹائٹل کے نیچے اس کورس سے ریلیٹڈ اینڈ سیکشن جیسا کہ اسائنمنٹ، گریڈڈ ڈسکشن بورڈ، کوئز، ایکٹیویٹی سیشن اور اناؤنسمنٹ کے سیکشن دیے گئے ہیں۔ کورس لیسنز دیکھنے کے لیے کورس کے ٹائٹل کے اوپر کلک کریں۔ کورس کے ٹائٹل پر کلک کرنے سے جو اسکرین اوپن ہوگی اس کے اندر لیفٹ سائڈ پر آپ کو ٹیچر پروفائل، اس کی انفارمیشن اور بایوگرافی دی گئی ہے۔ ٹیچر کی پکچر پروفائل کلک کرنے سے ٹیچر سے ریلیٹڈ انفارمیشن ایک پاپ اپ ڈائلاگ باکس میں اوپن ہو جائے گی۔ اس کے نیچے انڈیکس لیسن کا لنک دیا گیا ہے۔ انڈیکس لیسن لنک کے اندر کورس سے ریلیٹڈ لیسنز، ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور کامنٹس کے ساتھ ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ انڈیکس لیسن ٹیب کے اندر آپ کی آنے والی گریڈڈ ایکٹیویٹیز جیسا کہ اسائنمنٹس، کوئزز کی ڈیٹیلز بھی دی ہوئی ہیں۔ انڈیکس لیسن کے نیچے کورس انفارمیشن کا لنک ہے۔ کورس انفارمیشن کے لنک کے اندر کورس سے ریلیٹڈ انفارمیشن، کورس سائنوپسس، لرننگ آؤٹ کمز دیے ہوئے ہیں۔ کورس انفارمیشن کے بعد FAQs کا لنک دیا ہوا ہے۔ FAQs لنک اوپن کرنے کے بعد FAQs سیکشن کھل جائے گا، جس کے اندر کورس سے ریلیٹڈ
ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवालात और उनके जवाबात दिए गए हैं। FAQs के बाद ग्लॉसरी का लिंक दिया गया है। इसके अंदर कोर्स से रिलेटेड अहम टर्मिनोलॉजीज और उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इन डिस्क्रिप्शंस को आप अल्फ़ाबेटिकली भी सर्च कर सकते हैं। ग्लॉसरी के बाद बुक्स का सेक्शन आता है। बुक्स के सेक्शन के अंदर कोर्स की बुक्स जो कि टीचर्स की तरफ से रेकमेंड की जाती हैं उनकी डिटेल्स मौजूद होती हैं। बुक्स के बाद डाउनलोड फाइल्स का सेक्शन है। कोर्स से रिलेटेड तमाम मटेरियल्स जो टीचर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, जो स्टूडेंट्स को स्टडी में हेल्प करते हैं, वो तमाम मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फाइल्स के बाद इंटरनेट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। इस सेक्शन के अंदर कोर्स से रिलेटेड यूजफुल वेबसाइट के लिंक्स दिए गए हैं जो कि स्टूडेंट्स की स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इंटरनेट लिंक्स के बाद ग्रेडिंग स्कीम का सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर कोर्स से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज जैसा कि असाइनमेंट्स, क्विजेज, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स, मिड टर्म, फाइनल टर्म की वेटेज की डिटेल दी हुई है। इंडेक्स लेसन के सेक्शन पर वापस आते हैं। इसके अंदर जितने भी कोर्स के टॉपिक्स और लेक्चर्स हैं वो यहाँ पर लिस्ट डाउन किए गए हैं। लेसन के लिंक को ओपन करने से जो स्क्रीन नजर आती है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले वीडियो टैब नजर आ रहा है। इसके अंदर लेक्चर की वीडियो दी गई है। वीडियो टैब के साथ रीडिंग का टैब है जिसके अंदर आपके लेसन से रिलेटेड तमाम कंटेंट आपकी स्टडी के लिए मौजूद है। इस सेक्शन के नीचे कोर्सेज से रिलेटेड मॉडरेटर डिस्कशन बोर्ड का पैनल दिया गया है जिसके जरिए आप अपने सवालात अपने इंस्ट्रक्टर्स को सेंड कर सकते हैं और आपके इंस्ट्रक्टर उस सवाल का जवाब आपको दे सकते हैं। इस सेक्शन में आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। राइट साइड पर वॉइस का बटन है जिससे आप वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। माय कमेंट्स का बटन आपको अपने कमेंट्स दिखाने के लिए दिया गया है। जैसे ही शो ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे तो तमाम कमेंट्स शो हो जाएंगे। इंटरफेस के हेडर के ऊपर आपको नेविगेशन लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स को यूज करते हुए नेक्स्ट एंड प्रीवियस लेसन्स की तरफ मूव किया जा सकता है और साथ में आपको लेसन लिस्ट भी दी गई है जहां पर आप रैंडमली किसी भी लेसन पर जा सकते हैं। LMS होम स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर स्टूडेंट पिक्चर पर क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले माई प्रोफाइल का लिंक है। इस लिंक को क्लिक करने से स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट प्रोफाइल के सेक्शन में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसा कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टडी प्रोग्राम्स दिए गए हैं। स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और एकेडमिक हिस्ट्री में स्टूडेंट की तमाम प्रीवियस हिस्ट्री दी गई है। माय प्रोफाइल के बाद चेंज पासवर्ड का लिंक है। चेंज पासवर्ड के जरिए स्टूडेंट्स अपने LMS का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड दिया गया है। ओल्ड पासवर्ड एंटर करने के बाद स्टूडेंट अपने LMS का न्यू पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड का क्राइटेरिया नीचे दिया गया है जिसके मुताबिक स्टूडेंट के पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर्स के दरमियान होनी चाहिए। पासवर्ड में एक लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आखिर में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आप अपने पासवर्ड में शामिल नहीं कर सकते। चेंज पासवर्ड के बाद माय लॉगिन हिस्ट्री का लिंक दिया हुआ है। माय लॉगिन हिस्ट्री के जरिए स्टूडेंट्स अपने पिछले 1 महीने की लॉगिन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि किस तारीख को किस वक्त LMS पर लॉगिन किया था। आइए वापस होम स्क्रीन पर चलते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर
स्टूडेंट के करंट सेमेस्टर के एनरोल्ड कोर्सेज को टाइल की शक्ल में दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले हम असाइनमेंट के सेक्शन को ओपन करते हैं। असाइनमेंट्स सेक्शन के थ्रू टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टूडेंट्स ने ड्यू डेट के अंदर बनाकर अपने टीचर को सबमिट करवानी होती है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने से स्टूडेंट के पास सबमिट फाइल करने का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट अपनी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड करेगा तो आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है या नहीं, असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है और इसके साथ ही इस पेज पर सबमिट के कॉलम में सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है और साथ वो डेट भी आ रही है जिस पर आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया। सबमिट वाले कॉलम में डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है जिस पर क्लिक करने से आप अपनी सबमिटेड असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। असाइनमेंट्स के हेड में एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसके मुताबिक इंस्ट्रक्टर असाइनमेंट सॉल्यूशन फाइल अपलोड करने के बजाय ऐसी असाइनमेंट दे सकते हैं जिसका जवाब आपने एक टेक्स्ट एडिटर में टाइप करके सबमिट करवाना होगा। स्टूडेंट्स इस टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करने के लिए इंसर्ट इमेज के आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस इमेज की हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। अपना आंसर टाइप करने के बाद प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से नजर आएगा। चेक करने के बाद उसको सेव कर दें। आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। असाइनमेंट सबमिट होने के बाद आप इसको दोबारा वेरीफाई या अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन हमारे पास GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का है। इसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अपनी ओपिनियन सबमिट करवाने के लिए एक टॉपिक देते हैं जिस पर स्टूडेंट्स को अपने कमेंट्स देने होते हैं। इस टॉपिक की डिटेल देखने के लिए हम व्यू के लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस GDB से रिलेटेड डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर टॉपिक, क्वेश्चन टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पोस्ट मैसेज के जरिए स्टूडेंट अपना मैसेज पोस्ट कर सकता है। GDB के बाद क्विज सेक्शन है। क्विज आइकॉन पर क्लिक करने से जो हमारे पास स्क्रीन नजर आती है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले क्विज टाइटल, उसके बाद क्विज स्टार्ट डेट, जिस डेट को ये क्विज पूछा जाएगा, क्विज एंड डेट, क्विज टोटल मार्क्स, क्विज स्टेटस और क्विज सबमिशन स्टेटस दिए हुए हैं। क्विज सबमिट करने के लिए टेक क्विज के लिंक को क्लिक कीजिए तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की विंडो खुल जाएगी। क्विज के अंदर स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ से क्वेश्चंस इशू किए जाते हैं। स्टूडेंट्स ने 90 सेकंड्स के दौरान हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है और ये क्विजेस स्टूडेंट्स ने डेडलाइंस के अंदर ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप स्टार्ट क्विज का बटन क्लिक कीजिए। आपके सामने एक नई विंडो में क्विज स्टार्ट हो जाएगा। हर सवाल को हल करने के बाद सेव का बटन जरूर दबाइए। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि जो सवाल आप एक दफा हल कर लेते हैं तो आप दोबारा इस सवाल को नहीं देख सकते। क्विज को हल करने के बाद आपके सामने क्विज फिनिश्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। उसके बाद क्लोज दिस विंडो का लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करने से आपका क्विज खत्म हो जाएगा। क्विज़ेस के बाद एक्टिविटी सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को अपने मुतल्लिका कैंपसेस में होने वाली वर्कशॉप्स के स्केड्यूल्स के बारे में
इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है। स्टूडेंट्स अपनी सहूलत के मुताबिक जिस डेट को पार्टिसिपेट करना चाहें उस स्लॉट में खुद को साइन अप कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी वजह से इन डेट्स में उन वर्कशॉप्स में शामिल नहीं हो सकते तो वो विद इन ड्यू डेट इसको छोड़ भी सकते हैं। अनाउंसमेंट्स के हेड में कोर्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स दी गई हैं, जिनमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए अपडेट देते हैं। स्टूडेंट्स इन अनाउंसमेंट्स को नेक्स्ट और प्रीवियस बटन के जरिए नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स का हेड दिया गया है। नेक्स्ट बटन क्लिक करने से आप आगे वाली अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं। होम स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर साइड बार मेन्यू दिया गया है, जिस पर सबसे पहला टैब होम का है। इसके बाद टू डू कैलेंडर का टैब है। टू डू कैलेंडर में स्टूडेंट्स को उनके आने वाली ग्रेडेड एक्टिविटीज जैसे कि असाइनमेंट्स, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स, क्विजेस, वर्कशॉप्स, डेट शीट अलर्ट्स और उनकी पेंडिंग फी दिखाई गई है। स्टूडेंट्स पर्टिकुलर सेक्शन को विजिट कर सकते हैं और डॉटेड एक्टिविटीज ये शो करती हैं कि इनकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज मंथली, वीक वाइज, डेली और अपनी आने वाली नेक्स्ट मंथ की भी एक्टिविटीज देख सकते हैं। टू डू कैलेंडर के बाद ग्रेड बुक का लिंक दिया हुआ है। ग्रेड बुक का सेक्शन इंतहाई अहम है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को उसके पिछले तमाम सेमेस्टर के रिजल्ट्स और मिड टर्म के रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के सेमेस्टर CGPA, क्यूमुलेटिव CGPA, कलेक्टिव CGPA और कोर्स के रिलेटेड रिजल्ट डिटेल्स दिखाई जाती हैं। ग्रेड बुक के बाद अकाउंट बुक का सेक्शन है। अकाउंट बुक के सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी शुदा चालान्स की डिटेल्स दी हुई होती हैं। कितने चालान यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को इशू हुए, उनकी अमाउंट्स कितनी हैं और उनकी ड्यू डेट्स क्या हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को ये चालान प्रिंट करने की ऑप्शन भी दी हुई है। इस प्रिंट बटन पर क्लिक करने से स्टूडेंट अपना चालान प्रिंट करके बैंक के अंदर जमा करवाएगा। जमा करवाने के बाद स्टूडेंट अपना पेड वाउचर इंटरफेस के जरिए अपलोड कर सकता है। अपलोड इंटरफेस में स्टूडेंट बैंक इंफॉर्मेशन और अपना मुतलका बैंक सिलेक्ट करेगा और बैंक का नाम और अपनी वाउचर की तस्वीर अपलोड करेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट की भी ऑप्शन दी जाती है। इस पे नाउ के बटन को क्लिक करने से एक फॉर्म सामने आता है जो कि स्टूडेंट ने फिल करना होता है। मुतलका इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट का बटन दबाएं। सबमिट का बटन दबाने के बाद पेमेंट कंफर्मेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी पेमेंट डिटेल्स एक दफा वेरीफाई करके कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट इंफॉर्मेशन के लिए वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करना होंगी। ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद पे का बटन दबाकर आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी फीस बज़रिया HBL, ईजी पैसा, नादरा, ई सहूलत और फिनका बैंक के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या किसी भी कैंपस के मुलाजिम को फीस जमा करने का इख्तियार नहीं है। अकाउंट बुक के बाद लेक्चर स्केड्यूल का लिंक है। इसमें ना सिर्फ स्टूडेंट के लेक्चर की डिटेल्स दी गई हैं, बल्कि कौन सा लेक्चर किस दिन और किस टाइम के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी टेलीविजन नेटवर्क के किस चैनल के ऊपर आएगा, ये तमाम डिटेल्स भी मौजूद हैं। लेक्चर स्केड्यूल के बाद मेल का लिंक आता है। इस लिंक को ओपन करने पर आपको VU ईमेल के ऊपर ले जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स को VU की तरफ से इशू की गई है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
ای میل کے بعد نوٹس کا لنک ہے. نوٹس لنک اوپن کرنے سے ایک اسکرین اوپن ہوتی ہے جس میں اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ پرسنل نوٹس ایڈ کر سکتے ہیں. نہ صرف ایڈ کر سکتے ہیں بلکہ اس کو ایڈٹ اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. نوٹس کے بعد مائی اسٹڈی اسکیم کا سیکشن آتا ہے. مائی اسٹڈی اسکیم میں اسٹوڈنٹ کی ڈگری سے ریلیٹڈ جو کورس اسٹوڈنٹ نے اسٹڈی کرنے ہیں ان کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں. کون سے کورسز اسٹوڈنٹ نے پاس کر لیے ہیں اور کون سے پینڈنگ ہیں یہ انفارمیشن اسٹوڈنٹ اس سیکشن میں سے دیکھ سکتے ہیں. مائی اسٹڈی اسکیم کے لنک کے بعد مائی اسٹڈیڈ کورسز کا لنک آتا ہے. مائی اسٹڈیڈ کورسز کے اندر اسٹوڈنٹ کے پاس شدہ کورسز نظر آتے ہیں. جو کورس اسٹوڈنٹ پاس کر چکا ہے وہ اس سیکشن میں نظر آئیں گے اور اسٹوڈنٹ اپنی پرانی ڈسکشن اور لیکچر بھی یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں. مائی اسٹڈی کورسز کے لنک کے بعد اسٹوڈنٹ سروسز کا سیکشن آتا ہے. اسٹوڈنٹ سروسز کے سیکشن کے اندر 4 ہیڈز دیے گئے ہیں جن میں سے پہلا ایکیڈیمکس ہے. ایکیڈیمکس کے اندر HEC ڈیجیٹل لائبریری کا لنک ہے. دوسرا اسٹوڈنٹ ہینڈ بک کا ہے. اکاؤنٹس کے اندر پہلا لنک نیڈ بیسڈ اسکالرشپ کا ہے. اس کے بعد سیکیورٹی ریفنڈ ہے. اسی طرح ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں پہلا لنک ڈیٹ شیٹ بنانے کے لیے اور دوسرا لنک ایڈیشنل ٹرانسکرپٹ کا ریکارڈ منگوانے کے لیے ہے. اس کے بعد اپلائی فار ڈگری، اپلائی فار پارشل ٹرانسکرپٹ، اپلائی فار ری چیکنگ آف پیپرز، اپلائی فار ری اسکیجولنگ پیپرز. اس کے بعد اوورسیز ایگزامینیشن سسٹم کا لنک دیا ہوا ہے. رجسٹرار آفس کے اندر ایڈمیشن، withdrawal ریکویسٹ، کیمپس چینج ریکویسٹ، کنٹینیویشن فارم، کریڈٹ ٹرانسفر لنک، ڈپلیکیٹ آئی ڈی کارڈ ریکویسٹ لنک، مائگریشن سرٹیفکیٹ لنک، پروفائل پکچر چینج. اس کے بعد پرفارما فار ڈسیبل اسٹوڈنٹس، ری ایڈمیشن، سیمیسٹر فریز، سیمیسٹر انفریز اور اسٹڈی پروگرام کنورژن کے لنکس دیے ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹ سروسز کے بعد کورس سلیکشن کا لنک دیا ہوا ہے جس کے ذریعے اسٹوڈنٹس اپنے کورسز سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس ضمن میں یہ بات یاد رکھیں کہ فرسٹ سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹس اس آپشن کو اویل نہیں کر سکتے. لاگ ان انٹرفیس پر سب سے نیچے کانٹیکٹ اس اور سپورٹ کے لنک دیے گئے ہیں. کانٹیکٹ اس پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے اسکرین پر تمام ضروری فون نمبرز، ای میلز، فیکس شو ہو جاتے ہیں. LMS سے سائن آؤٹ کرنے کے لیے پروفائل پکچر پر کلک کریں اور اس کے آخر میں آپ کو لاگ آؤٹ کا بٹن دیا ہوا ہے. اس لاگ آؤٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ LMS سے سائن آؤٹ ہو جائیں گے.